Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our new lecture which is based on web designing and development. The topic is current web technology trends, state of the art technology challenges. This is our first online session. Start with the discussions. Uh, we can start the communication on the web first, then web services technologies, web design, state and dynamic web pages, scripting and types of scripting languages, popular scripting languages, cascading style sheet, basic concepts of HTML, and the current trends of web design. Start with the definition of website. A website is a collection of web pages. A web pages may contain text, graphics, sounds, animations, and movies. Web pages are developed with the help of a language called hypertext markup language, means HTML. It is also known as it is also known it is also a language of internet. We can call it a language of internet. Any question here? Now, how is the website made available the internet? What is the procedure? These web pages are to be stored in web servers connected to the internet to be made available to others. The next is how we can communicate on the internet, on the web. Communication on web is a overall process of client server architecture. Client requests to the server and server respond or reply to the client. Just client means, for example, client is a browser and a server is a web server. Any question here? किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है. Next, communication on web. Another scenario, in order to communicate on the web, computer device need to understand each other. This is made possible by making all devices follow the same protocol, namely TCP/IP. यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस की गई है वो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि एक कंप्यूटर है यानी कि क्लाइंट है और क्लाइंट के पास वेब ब्राउज़र ओपन है. वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री हम यूनिवर्सिटी में क्लास जब हो रही थी हमारी कोरोना से पहले तो हम डिस्कस कर चुके थे कि वेब ब्राउज़र्स कैसे हमारे पास आए, फर्स्ट वेब ब्राउज़र कैसे कौन सा था और उसके ईयर कौन सी थी जब वो पब्लिश हुई और लास्ट ब्राउज़र हमारे पास कौन से आए. तो क्लाइंट के कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र ओपन है जिससे वो रिक्वेस्ट कर रहा है ये अपने कंप्यूटर सर्वर्स को यानी कि सर्वर को. और ये सर्वर्स कहाँ पर हैं? ये सर्वर्स हमारे बेसिकली हैं एक डेटा सेंटर के अंदर और वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी रिक्वेस्ट आई हुई होती है तो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए? क्लाइंट के लिए. अब बीच में हमारे यहाँ पर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में जो रिक्वेस्टिंग और रिस्पॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे हमारे पास कुकीज़ भी सेव होती हैं. जब वो इसको रिक्वेस्ट करता है और फिर बाद में इनको रिस्पॉन्ड मिलता है तो बीच में ये जब इनका पहला प्रोसेस होता है तो वो अपने पास कुकी सेव करते हैं ताकि फर्दर जब वो नेक्स्ट टाइम इनसे कनेक्ट होंगे तो वो इसे और आसानी से जो है वो रिक्वेस्टिंग इसकी रिक्वेस्टिंग को रिस्पॉन्ड कर सके. यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज कर सकता है. चलो. Next, communication on web, a third scenario. In order to communicate on the web, computer devices need to understand each other. Computer or devices need to understand each other. This is made possible by making all devices follow the same protocol, namely TCP/IP. Now, what exactly the meaning of TCP and IP? And what exactly is TCP and IP? Transmission Control Protocol एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये दोनों का काम क्या है? आईपीस. हर कंप्यूटर के पास उसकी एक पर्टिकुलर आईपीस होती है और इसके अलावा जो है टीसीपी. टीसीपी का काम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. मेरे पास क्वेश्चन आया हसीब का. जी हसीब बोले. सर वो वही मैं मीनिंग बताने वाला था, आपने खुद बता दी, उसके लिए हैंड रेज किया था. चलें कोई बात नहीं, थैंक यू.
तो हमें पता चला टीसीपी आईपी का काम क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि इंटरनेट पे होने चाहिए। यानी कि जब हम वेब को कुछ चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट डिवाइस के थ्रू, और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, कुछ कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो वो किसके थ्रू हो रही है? एक लैंग्वेज के थ्रू हो रही है, एक प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। कि मेरी भी लैंग्वेज उर्दू, आपको भी समझ आ रही है, आपको इंग्लिश भी समझ आती है, तो हम दोनों एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आप मुझे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछो, आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मुझे आंसर्स दे रहे हो। तो दैट इज टीसीपी एंड आईपी, ये है हमारे कम्युनिकेशन ऑन द वेब। टीसीपी हमें जो है वो बेसिकली मेनली चीज़ें फराहम करता है, जैसे कि इमेज की जो है वो कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर कोई टेक्स्ट की कम्युनिकेशन हो जाए। और आईपी का मेनली काम क्या है? बेसिकली अगर कोई भी कंप्यूटर, जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर नेम है, सेम एज हर कंप्यूटर का उनकी एक आईपी होती है। वो क्या करते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट के सर्वर को, तो उनके पास उनकी आईपी जनरेट होती है, उनका नेम जनरेट होता है कि हाँ इसको रिस्पॉन्ड करना है सबसे पहले, और जो उसने रिक्वेस्ट की है उसको इसे जो है सबसे पहले हमें रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम आगे चलें, तो हमारे पास राउटिंग ऑफ अ डेटा पैकेज फ्रॉम सेंडर टू आवर रिसिप्ट, कि किस तरह एक क्लाइंट अगर कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर को, तो बीच में हमारे पास कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स आएंगे, किस रूट से वो जाएगा, किस तरीके से वो ट्रेवल करेगा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। और उसके दरमियान हमें किस तरह जो है वो किस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जाना चाहिए। तो ये उसकी एक बिल्कुल बेसिक इजीली डायग्राम है जो कि आपको समझ आ जाएगी कि इंटरनेट पे अगर मैं कोई चीज़ अपने सिस्टम पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो उसका जो सर्वर है वो बेसिकली है चाइना में पड़ा हुआ, तो वो किस पाथ के थ्रू जाएगा। और ऐसा पाथ होना चाहिए जो कि शॉर्टेस्ट फर्स्ट हो, जल्दी पहुंच जाए और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचे और हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट हमारे पास है, in the internet there are several types of communications. Now there are mainly three main types of mainly three main types of communications. Number one is websites are accessed using http or https, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें जो है वो सिक्योर वाला मैनर। अब सिक्योर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि सिक्योर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। Number second is email communication happen using SMTP. The third one is internet protocol provide the basic of communication over internet. याद रखिएगा ये चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। मैं आपको एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ, और उसके बिल्कुल लास्ट में 4-5 स्लाइड हैं जो कि हमारा टॉपिक है, वो उसको कवर करेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए और पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाए, और आपके पेपर जो 16 को होंगे इंशाल्लाह उसमें ये आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। Now what exactly the rule of routings or routes in transporting data in internet, कि हमारा जो है वो क्या रूल होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इंटरनेट के अंदर, यानी कि रिक्वेस्टिंग टू रिस्पॉन्डिंग। the routers need not to program separately to handle different type of data. They do not need to know about the data they are transporting. The third one is it concerned only about the address to which the package is to be delivered. तीन चीजें इन्होंने की है, और आप जरा गौर से देखिए तो कुछ चीजें जो है बोल्ड हुई हुई है। नीड नॉट बी प्रोग्राम सेपरेटली टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि हर प्रोग्राम की सेपरेटली हैंडलिंग नहीं हो रही डेटा को गैदर करने की और डेटा को ट्रांसमिट करने की। सेकेंडली, टू नॉट नीड टू नो अबाउट द डेटा, हमें कोई नीड नहीं है डेटा को जानने की जब हम रिक्वेस्टिंग टू रिस्पॉन्डिंग वाला मैनर कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन वाला मैनर कर रहे हैं। तो दूसरी चीज है डू नॉट नीड टू नो अबाउट द डेटा। द थर्ड वन इज कंसर्न ओनली अबाउट द एड्रेस, हमें जस्ट डेस्टिनेशन की एड्रेस फाइंड आउट होनी चाहिए, यानी कि डेस्टिनेशन की एड्रेस हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर इसे डिलीवर करना है। ये तीन मेन राउटर्स की जो है वो रूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑन द वेब कैम। वेब
can be categorized. There are two ways. Number one is client browser to web servers. Second one is web server to web server communications. थोड़ी देर हम पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइंट और वेब सर्वर की जो है वो कम्युनिकेशंस के बारे में, कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है. अब यहाँ तो बड़ी आसानी से हमें समझ आ गया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो बिल्कुल ठीक है. सेकेंडली हमारे पास है वेब सर्वर टू वेब सर्वर, यानी कि दो वेब सर्वर्स हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे और कैसे जो है एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. उसे समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन के कुछ एसेंशियल रूल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके एसेंशियल रूल्स क्या है जब हम आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं. तो उनके लिए सबसे पहले हमारे पास है ऑथेंटिकेशन. Now what exactly the authentication is? Authentication is the process of determining whether a computer or a server in the computer that is claimed to be. हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन किसके पास है, किसके पास वो इख्तियारात हैं कि वो उसको एक्सेस कर सके. सही है. जैसे कि हमने ऑथेंटिकेशन दी, फेसबुक में मैं यूज़ करता हूँ तो आईडी पासवर्ड मेरे पास है, ये मेरी ऑथेंटिकेशन है. मैंने कहा कि यार मैं आज यूज़ नहीं कर सकता या ये जूम का चैनल में यूज़ नहीं कर सकता, तो इसकी मैं आईडी पासवर्ड जो है वो जिब्रान को दे दूँ. जिब्रान तुम आज कंडक्ट कर लो. तो ये ऑथेंटिकेशन मैंने किसके हैंड ओवर कर दी? मैंने हैंड ओवर कर दी जिब्रान के. अब नो डाउट यहाँ पर हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशंस में जो एसेंशियल रूल्स है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं जब हम चीज़ें शेयर करते हैं. मींस कि अगर मैं किसी को ऑथेंटिकेशंस दे रहा हूँ, ये एक अच्छा वे नहीं है, ये एक अच्छा वे नहीं है. इस वजह से नहीं है क्योंकि ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए. हमें ऑथेंटिकेशंस किसी के साथ शेयर नहीं करिए. यहाँ पर जब हम ऑथेंटिकेशन शेयर करते हैं तो हैकिंग का बड़ा खतरा जनरेट हो जाता है, और हैकिंग का जब खतरा जनरेट होता है तो हमारे पास मिलीशियस अटैकर्स, मिलीशियस इनसाइडर्स ये पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकी वजह से हैकिंग बड़ी आसानी से डन हो जाती है. तो ऑथेंटिकेशंस कभी भी शेयर ना कीजिए. और हमेशा एक बार याद रखिएगा, जब भी आप ऑथेंटिकेशंस हम अपनी रखते हैं, जैसे कि फेसबुक पे आपने एक आईडी पासवर्ड बनाया तो उसको सिमिलर मत रखिएगा जो कि जीमेल की आईडी पासवर्ड हो, और उसी को सिमिलर मत रखिएगा जो कि आपकी ट्विटर की अकाउंट हो. तो चीज़ों को चेंज करिएगा. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द सिक्योरिटी इज? इट शुड बी प्रोवाइड टू कम्युनिकेशंस ओवर इंटरनेट. ये आपको ये अलाउ करना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू नहीं, सो दैट द मैसेज आर नॉट इंटरसेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय हैकर्स. जो चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑथेंटिकेशंस में, जब तक आप ऑथेंटिकेशंस किसी को नहीं देंगे तब तक आपकी सिक्योरिटी हार्म नहीं होगी. जब आपकी सिक्योरिटी हार्म नहीं होगी तब तक कोई आपकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको मॉडिफिकेशंस नहीं करेगा. जैसे कि अगर आपने किसी को दे दिया तो मिलीशियस इनसाइडर भी हो सकता है. लेट्स सपोज जिब्रान का नाम मैंने लिया कि जिब्रान को मैं अपनी ऑथेंटिकेशंस दे रहा हूँ और जिब्रान जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है. तो जिब्रान क्या करेगा? जिब्रान अगर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या मेरी आईडी पासवर्ड को जो है वो मॉडिफाई करने की कोशिश करे, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा मिलीशियस इनसाइडर. ये बंदा जो है वो मिलीशियस इनसाइडर है. ये मेरे साथ रह के भी मेरी आईडी को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को नुकसान पहुंचा रहा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैकिंग. ये भी एक हैकिंग होती है, चाहे वो मिलीशियस अटैकर हो जो कि पीछे बैठ के अटैक करे, और कोई मिलीशियस इनसाइडर हो जो कि मेरे साथ रहकर मुझे हार्म पहुंचाए. होप आपको ये समझ आ गया होगा. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. नेक्स्ट, अब हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे पिछले वाले कम्युनिकेशंस कैटेगरीज को, जो थी क्लाइंट टू वेब सर्वर और वेब सर्वर टू वेब सर्वर, क्योंकि ये एसेंशियल कम्युनिकेशंस पार्ट थी जो कि हमको डिस्कस करना ज़रूरी थी. इसके बाद अब हमारे पास आया पहला, क्लाइंट ब्राउज़र टू वेब सर्वर. इट डज नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशंस. इसको ऑथेंटिकेशंस की रिक्वायर्ड जो है इसे ज़रूरत नहीं होती ऑथेंटिकेशंस की. But in the case of web-based banking application or email services, username and password are required to be sent to the server. But कुछ parts हैं जो कि share करना ज़रूरी है और होना ज़रूरी है और required ज़रूरी है. वो क्या क्या है? वो है web-based banking applications के अंदर और email services के अंदर हमें
हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर हम ईमेल सर्विस जीमेल की बात करें अभी, तो जीमेल में हमारे पास क्या होता है, जीमेल में हमें ऑथेंटिकेशन देनी ज़रूरी होती है, ईमेल पासवर्ड देना। अब उस ईमेल को बनाने के लिए और जो उसकी यूटिलाइजेशंस के लिए, उससे पहले हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है, उससे पहले हमें अपने नेम, आईडी, नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान, ये वो सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम पूरी डिटेल दें और उसके बाद हमें वो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। The third one is this information cannot be sent to the server in the plain text due to security reasons. कभी भी क्लाइंट ब्राउजर में प्लेन टेक्स्ट यूज नहीं होता। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट से मुराद, आपने अगर डिस्कस किया हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर हमारे पास होता था साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट। ये बात वो प्लेन टेक्स्ट की हो रही है, ना कि सिंपल प्लेन की बात हो रही है। तो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में डिफर क्या था, साइफर टेक्स्ट हमारे होते हैं इनकोडेड, ठीक है, इनक्रिप्टेड वाले, तो वो साइफर टेक्स्ट थे हमारे। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन हमारे पास है वो बेसिकली डीकोडेड होता है, यानी कि डीक्रिप्टेड होता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया है, ये है डिक्रिप्टेड। तो यहाँ जो ये लाइन कहना चाह रही है वो ये कह रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सेंड, कभी भी सेंड नहीं करता सर्वर को इन अ प्लेन टेक्स्ट, कभी भी डिक्रिप्टेड फॉर्म में ये चीज सेंड नहीं होती, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। The fourth one is the hackers may steal usernames and password if it is communicate and share as plain text. बहुत आसान हो जाता है हैकिंग जब हम कोई भी चीज़ प्लेन टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। मैंने आप सबको एक रिसर्च पेपर भी कहा था कि आप लोग डाउनलोड कीजिए, और आप असाइनमेंट के तौर पे, जब आप की ऑफ चल रही थी, यूनिवर्सिटी वेकेशंस पे थी, तब मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है वो एक रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, उसकी समरी बना के मुझे दें। तो बहुत सारे बच्चों ने करके भेजी, और कुछ ने तो बिल्कुल लास्ट में 31 मेरे ख्याल से 31 जो है वो मई को सेंड की। तो उसमें भी कुछ ने रिसर्च पेपर पढ़े थे, और इसमें एक पेपर मेरा भी था इस हैकिंग वाले फैक्टर में, जिसमें मैंने इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड पे काम किया था, और 3-4 बच्चों ने उस पेपर पे भी काम करके मुझे उसकी चीज़ें भेजी। तो उनका बड़ा अच्छा पेपर था, मैंने जब उनकी समरी पढ़ी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको यूटिलाइज किया था। तो वो बच्चे खास तौर पे समझ गए होंगे कि द हैकिंग में स्टील यूजर नेम्स एंड पासवर्ड इफ़ इट इज़ कम्युनिकेट एंड शेयर एज प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज़ डिक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड नहीं करते, क्योंकि अगर हम डिक्रिप्टेड फॉर्म में या फिर डिक्रिप्शन करके भेजेंगे तो वो चीज़ हैकिंग होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। दैट्स वाई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज़ यू मे आस्क। चलें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP, HTTPS सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी थी HTTP, तो आप लोग मिस कर गए होंगे। मैंने वैसे डिस्क्राइब कर दिया कि वहाँ पर HTTPS भी होना चाहिए, बट वो ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो आगे मैंने वो चीज़ पहले से रखी थी, क्योंकि आजकल हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स जो है वो HTTPS पर मेनली फोकस कर चुके हैं और मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द HTTPS इज। HTTPS hypertext transfer protocol secure technology to encrypt the username and password and then send it to the server। टेक्नोलॉजी है जो कि इनक्रिप्ट करती है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम इनक्रिप्शंस एंड डिक्रिप्शंस, यानी कि साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट। जब भी साइफर टेक्स्ट की बात होगी तो वो इनक्रिप्ट मैनर में होगा, जब भी प्लेन टेक्स्ट की बात होगी तो वो डिक्रिप्ट मैनर पे होगा। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हर चीज़ हमारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इनक्रिप्ट फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर हमें साइफर फॉर्म में होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी टू encrypt the username and password and then send it to the server। तो ये हमेशा क्या करता है, encrypt manner में चलता है। It work using SSL। What exactly the SSL is? Secure socket layer। That is a layer which is used in HTTPS for the security reasons। Next is SSL. What exactly SSL is? SSL provide a standard security technology establishing an encrypted connection between computer
on internets. तो यहाँ पर जो SSL डिस्क्राइब कर रहा है कि SSL प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज होती है।